What happens when metals or non-metals react with oxygen? क्या होगा जब metals या non-metals oxygen के साथ react करेंगे? They form oxides. On the basis of their nature, oxides may be classified into three classes. नेचर के बेस पर हम ऑक्साइड्स को जो है तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। बेसिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। वाई आर दे कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स? बिकॉज व्हेन बेसिक ऑक्साइड्स आर डिजॉल्व इन वाटर, बेस इज फॉर्म। यू कैन सी इन द एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, दे फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. When sodium oxide reacts with water, sodium hydroxide is formed. When calcium oxide reacts with water, calcium hydroxide is formed. In all the three equations, you can see that base is formed. That's why this is called basic oxides. Basic oxides has ability to dissolve in water. They are water soluble होते हैं basic oxides. Acidic oxide. Non-metal oxides such as carbon dioxide, sulfur dioxide, phosphorus pentoxides, when mixed in water, they produce acidic solution. That's why they are called acidic oxides. You can also say that oxides of non-metals are acidic oxides. Acidic oxides, when reacts with water, acid is formed. You can see carbon, sulfur and phosphorus. These are non-metals. When they react with oxygen, they form carbon dioxide, sulfur dioxide, phosphorus pentoxide. These are acidic oxides. And when these acidic oxides react with water, they form acids. In first equation, you can see carbon dioxide reacts with water and form carbonic acid. Sulfur dioxide reacts with water and form sulfuric acid. Phosphorus pentoxides, when reacts with water, it forms phosphoric acid. In metal oxides such as zinc oxide, aluminum oxide are not water soluble, but they have ability to react with both acid and base. These are called amphoteric oxides. They are both acidic and basic in nature. When they react with acid or base, a salt is formed in both cases. You can see the example: when aluminum oxide reacts with sodium hydroxide base, it forms salt, sodium aluminate and water. And when aluminum oxide reacts with acid, hydrochloric acid, again it forms salt and water. This is a very easy question, self-assessment. Identify acidic, basic and amphoteric substances in the following. सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इसमें जो ये ऑक्साइड है सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो नॉन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और इसको जब आप वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो वो टॉपिक आप एक दफ़ा रिकॉल करेंगे तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। और जब सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हमने क्या आइडेंटिफाई किया? इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर से रिएक्शन करेंगे, ये एक सॉल्ट है। आपको बताना है कि इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। तो जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, वन इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसलिए अमोनियम क्लोराइड की जो नेचर है वो एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट is a salt. When sodium carbonate reacts with water, sodium hydroxide
and carbonic acid is formed. Sodium hydroxide is a strong base while carbonic acid is a weak acid as compared to sodium hydroxide. So the nature of sodium carbonate is basic because it forms a strong base that is sodium hydroxide. Sodium carbonate जो है वो एक basic salt है. As we have discussed earlier that in case of zinc oxide, oxides of aluminium and zinc are amphoteric in nature because when they react with acid दे हैव एबिलिटी टू रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस. ठीक है, तो एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ भी, और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. तो जिंक ऑक्साइड जो है, जो ZnO है, वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है. नेक्स्ट वन इज सोडियम ऑक्साइड. सोडियम जो है वो एक मेटल है. तो सोडियम के जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो यूजुअली बेसिक इन नेचर होते हैं, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं. सोडियम ऑक्साइड को जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक सब्सटेंस है. सोडियम ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक सब्सटेंस है. जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक सब्सटेंस है. सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक है, बेसिक सॉल्ट है. अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक सब्सटेंस है.